प्रेज लॉर्ड सबको। जय मसीह की। जय Praise the मसीह। Lord, brother. Jai Praise Masi the ki. Lord, Jai Masihi brother. Praise the Lord, brother. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सॉरी फॉर कीपिंग ऑल वेटिंग। आज थोड़ा लेट हुआ, वेरी सॉरी। कल का सब तैयारी में थोड़ा बिजी था। भाई हम मीटिंग की शुरुआत करेंगे। मोनिशा, यस ब्रदर। yes, you can pray and start the meeting. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु आपके नाम में हम सबको जोड़ने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया और करुणा के लिए प्रभु हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर। प्रभु इस संगति को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप ही हमें चलाइए पिता परमेश्वर, आप ही हमें आपके वचन से समझाइए पिता परमेश्वर, और हमें और वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आपके अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। सहायता कीजिए परमेश्वर, जो भी वचन आप आपकी ओर से आता है पिता परमेश्वर, हम उसका आज्ञा पालन करें पिता परमेश्वर। प्रभु आगे का समय पूरा आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord, everyone. I request all the children to keep their videos on. So today I would like to share with you all about the identity, our identity in Christ, and what is our role, like what God expects from us. So I would request Enoch to read from John chapter 1 verse 12. It's John chapter 12 verse John chapter 1 verse 12, right? Yes. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Okay. So what right God has given us to become, and to whom? Can anyone answer? What right God has given us? Read this verse again, like every one of them. What does God? What right God has given us to become? To become the children of God. And to whom He has given that right? Who all have received him. Yeah, right. So God has given those who believe in Him. God has given them the right to become His children. So, do you all believe that we are God's children? Do you believe in Jesus? Yes. So we all believe, right? We are children of God. But we often forget that we are God's children. So, like we need to remember it. But how we'll remember it that we are God's children? First, we should know who is our God. So we all know that our God is very great. Our God is the creator of heavens and the earth. He created so many things. He created the stars, the moon, the trees, the waters, sea. We know that our God is a creator God, and He is very great. He even made us in His image. So, and He still cares for us. He loves us. He loves all of us. So we need to remember that God loves us and we are His children. But the story doesn't end there itself. But we need to like God expects something from us. So, what do we
Like, what does God expect from us? First is we need to spend time with God. So, do you all remember that Bhavita auntie had taught us about the parable in John 15, the parable of Jesus and Jesus being the vine and we the branches? So, in that we learn that Jesus is the vine and we are branches. So, we need to stay connected to God, and then only we'll be able to bear fruit. So, how can we stay connected to God? Can any one of you answer? Tabitha? Through Jesus. Yes, so Jesus, and to by praying, by spending time in prayer, and by reading His Word. So we need to stay connected to God through Jesus, and then only we'll be able to bear fruit. Second thing is we need to bear fruit. Like we need to bear fruit because that will only reflect God's character. Okay, and the third thing is we need to live righteously. So the thing which we need to remember is that we are God's children and God loves us, God cares for us, and God expects that we need to stay connected to Him. We need to bear fruits and we need to walk righteously. And our life should reflect God's character and our life, and we should live for God. So I want you all to remember this, and to remember this verse also, that He has given us the right to become His children. So let us move into memory verses. I'll start with Philemon. Psalm 22 verse 1 to 3. My God, why are you forsaken me? Why are you so far from helping me? And the words of my groaning, I cry in the daytime, but you do not hear, and in the night season, and am silent, but you are wholly enthroned in the praise of Israel. Psalm 22 verse 1 to 3. Good, Philemon. Tabitha. Psalm 10 verse 1 to 4. Why do you stand afar off, O Lord? Why do you hide in times of trouble? The wicked in his pride persecutes the poor. Let them be caught in their plots which they have devised. For the wicked boasts of his heart's desire. He blesses the greedy and renounces the Lord. The wicked in his proud countenance does not seek God. God is in none of his thoughts. Good, Tabitha. Enoch. Psalms 118 verse 1 to 6. Give thanks to the Lord, for He is good, for His love endures forever. May Israel give thanks to the Lord, because may Israel say that the love of the Lord endures forever. May the house of Aaron say that may the love of the Lord endures forever. May the people who fear to the God say that the Lord the Lord's love endures forever. When I am hard pressed, I cried out to Him. He brings me in a spacious place. Hestiba. The Lord In the Lord on my side, I will not fear no fear what what man can do I can do unto me. unto me. Psalm 180 Psalm 180 verse 6. verse 6.
Good Hestina. Neha. Romans 8 verse 28 and 29. For we know that in all things God works for the good to those who love him, and those who are called according to his purpose. For God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Shruti. Yes. Galatians 5 verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, and peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Yes. Yes, class. Mahima. Praise the Lord. Psalm 75, 1 verse 1 to 5. We give thanks to the Lord. Oh God, we give thanks for your name is near. Men tell of your wonderful deeds. You say, I choose the appointed time. It is who judge uprightly when the earth and all the peoples quake. It is to hold in the pillar firm to the arrogant. I say, boast on more, and to the wicked, do not lift up your horns. Do not lift up your horns against heavens. Do not speak with the outstretching neck. Mahima. प्रेज गॉड। भजन संगीता भजन संगीता 34 का 2 मैं यहोवा पर घमंड करूंगा नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। Amen. 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 I would request Lorna Di to pray for children, and over to you, Di. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you, Father God, for all these children, of Father God. Whatever, O Lord, memory was, O Father, that they have said, O Lord, help, O Lord, that they may walk, O Father God, on your word, O Father God. Let your fear be instilled in your heart, O Father. Let them grow in your love and in your fear, O Father God. Be with them in their going and in their coming, O Father God. Be with them in their studies, O Father God. Help them, O Lord, and wherever they are, O Father God, help them to be an example, O Lord, and to stand for you, O Lord God. I pray, O Lord, and I bless them, O Father God, with good health, O Father God. Let them grow and stand for you, O Father God. Lord, I even, oh Father God, as we will start the worship, of Father God, I thank you, O Lord, that you have given us this day, O Father God. I thank you, O Lord, that you have helped each one of us, O Lord, to gather into your presence, O Father God, as one family, O Lord, and to rejoice and glorify your name, O Father God. Help us, O Lord, to worship you in truth and spirit, O Father God, and let our worship, O Lord, be acceptable in your sight, O Father God. We give this time into your hands. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले
आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा।
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, O Lord. We thank you, Father, for each and everything that you are doing in our life, O Lord. We thank you, O Lord, that we have you, O Father God, that we are called as your children, O Father God. Yes, Lord, and that we have got the gospel, O Father God. Yes, Lord, and Father God, that we are saved, O Father. Help us, O Lord, to be a responsible Christian, O Father God. Help us, O Lord, to work out our salvation, O Lord, and that we may not take you and your word lightly in our life, O Father God, but that we may keep you above everything, O Lord, that we may give you the first preference in our life, O Father God. I thank you, O Lord. I thank you, O Daddy God, and I also pray, O Lord, for this time of word, O Father. Whatever word will be shared, O Lord, help, O Lord, that we may open our hearts, O Father God, and that we may receive your word, O Father God, obediently, O Father God. Help us, O Lord. Let the Holy Spirit, O Lord, stir up our hearts and our mind, O Father God. Let your word, O Father, be inscribed in our hearts, O Father God, that we may walk upon it, O Lord, and that we may not sin against you, O Lord. I also pray, O Lord, for Joe's uncle, O Lord. Bless him, O Father God. Use him more and more, O Father God, for your glory, O Father. I give this time into your hand. I ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Lona, for leading us in worship. Thank you, Monisha, for leading the children ministry today. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना का मनोभावना में रहेंगे. Let us spend some time in prayer. हम सब एक मन होके कुछ क्षण मध्यस्थी करेंगे, प्रार्थना करेंगे अलग अलग विषयों के लिए, जैसे पवित्र आत्मा हम सबको याद दिलाता है. कल सील आश्रम में जाने का जो विचार हम सब ने रखा था, प्रार्थना किया था, जैसे हम में से कुछ लोग जाएंगे सील आश्रम कल, वो एक आशीष का समय रहे हमारे लिए और उनके लिए भी. हम एक दूसरे का संगति का बताए, हमारे जाने और आने में परमेश्वर का उपस्थिति हम सबके साथ रहे. और वहाँ पर भी जैसे हम उन लोगों से मिलेंगे, थोड़ी देर सेवकाई करेंगे उनके बीच में, पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई करे और उन लोगों का भी गवाही सुनकर हम उत्तेजित होकर हमारे जीवन और भी बदले, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे. कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए कल का ट्रिप के लिए. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु. आप परमेश्वर, हम खास कर प्रार्थना करते परमेश्वर कल के दिन के लिए. परमेश्वर कल प्रभु जो आपने मेरे लिए देने वाले हो प्रभु, उस दिन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु. हम जो सील आश्रम में जाना चाहते परमेश्वर, आप परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हमें संभाल कर लेके जाए और संभाल कर लेके आइए परमेश्वर. जो आपका इच्छा है प्रभु, हम वहाँ पे सेवा कर सके प्रभु. उन लोगों के लिए परमेश्वर जो आपने उन्हें चुना है प्रभु, हम उनको दिल से सेवा करें परमेश्वर. और उधर के जो भी उनका जरूरत है परमेश्वर, उन सारे चीजों के लिए हम प्रार्थना कर सके परमेश्वर. और उनका हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए करके प्रार्थना करते प्रभु. और हमारे आने जाने में प्रभु हमें संभाल कर लेके जाइए और संभाल कर लेके आइए. हम सबको आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती, सुनो, ग्रहण कर पिता. आमीन. 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 हम प्रार्थना करेंगे. यहाँ पर उपस्थित इस बाइबल स्टडी संगति में हम सब जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं, निरंतर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमें अवश्य है, जरूरी है कि हम
पवित्र आत्मा का सामर्थ का व्यक्ति के रूप में अनुभव करे। यदि हम में से कोई अनुभव किया है तो हम और परमेश्वर के करीब आए। पवित्र आत्मा का स्पर्श हम सब को बहुत जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के द्वारा अगुवाई होते हुए हर कार्य करें। वो कौन सा भी सेवकाई हो, प्रार्थना, बच्चों का सुसमाचार बांटने का या उत्साहित करने का जो वचन है, जो एक्सहॉर्टेशन हो, कोई भी सेवकाई, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे, उसके लिए हम समर्पित हो, ऐसा एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत जरूरी है। और ये जो बोझ है परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहा है कि हम जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वैसा हम we need to grow to the level in which God is expecting us, the Holy Spirit is expecting us. God wants to see that each one of us be transformed and become matured in Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उनमें परिपक्व हो, हम बढ़े और उनका कार्य हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा हो, कि हम भविष्यवाणी करें, हम परमेश्वर का वाणी को सुने और दूसरों को एक दूसरे को इस संगति में हम प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को प्रार्थना का एक मन हो। तो इन सब चीजों में हम अभी सामर्थ्य से बढ़े, उसके लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना कीजिए। Thank you, Lord, for this time, Lord. Lord, we pray, Lord. हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए परमेश्वर, और आप जो चाहते हैं परमेश्वर वो हम कर सके, ताकि परमेश्वर हम आपके आत्मा से हम भर जाए परमेश्वर। परमेश्वर, जब मूसा ने आपके आज्ञा के अनुसार पूरा मंदिर का निर्माण किया, तभी आपकी आत्मा, आपकी उपस्थिति बादलों से भर गई परमेश्वर उस पवित्र स्थान में, कि परमेश्वर मूसा भी अंदर जा ना सका। परमेश्वर, हमें परमेश्वर इस तरह से आप भर दीजिए, आपकी उपस्थिति से, आपके आत्मा से परमेश्वर। हम जो कुछ भी करें परमेश्वर वो असर कारक हो परमेश्वर, बहुत सारे हृदयों को छुए परमेश्वर। परमेश्वर, आप हमारे हाथों के कामों को आप आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर, आप आशीषित कीजिए, उसको अभिषेक कीजिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम मांगते हैं कि जब परमेश्वर तेरा आत्मा दाऊद पर आया, तभी परमेश्वर उसने उस सी और उस भालू को फाड़ दिया। जब तेरा आत्मा उस सैमसन पर आया, उसने उसके शरीर पे से वो सारी जो कुछ भी वो बंधा हुआ था वो जैसे टूट गया, जैसे वो बहुत ही साधारण सा था, इस तरह से टूट गया परमेश्वर। आपकी आत्मा में वो सामर्थ्य है परमेश्वर, वो सामर्थ्य से आप हमें भर दीजिए परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं परमेश्वर। हम रवि की बहन की बेटी के लिए मांगते हैं जो गुमशुदा है परमेश्वर। हम मांगते हैं कि उसके लिए हम आपकी सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर। आप जानते हो वो कहाँ पे है, किस हाल में है परमेश्वर, आपकी नजर उस पर है, और परमेश्वर आपकी सुरक्षा से आप उसको वापस ले आइए परमेश्वर। हम परमेश्वर आप पे पूरा भरोसा रखते हैं, और परमेश्वर उसकी सुरक्षा के लिए आपको हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं,
आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे विवाहित जोड़ी में जो पति और पत्नी है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक पति और पत्नियों के बीच में पारिवारिक जीवन में वे सब प्रेम में जिए और हर प्रकार के बाधाओं को विजय प्राप्त करके एक दूसरे के साथ क्षमा, पश्चाताप और प्रेम में बढ़ते जाए, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाए। शैतान का रिश्तों, पति पत्नी और पारिवारिक जीवन का जो रिश्ते को कड़वाहट में बदलने के लिए और रिश्ता तोड़ने के लिए शैतान हर एक चीज कर रहा है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हर एक का परिवार परमेश्वर का स्वभाव में मजबूत रहे, समर्पित जीवन जिए और पारिवारिक प्रार्थना जो है, वचन और प्रार्थना का स्थापना हो। अनेक परिवार में प्रार्थना नहीं होता है, तो इन चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम केवल आपके ऊपर भरोसा रखते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, वो तो सब गिर जाएंगे पिता परमेश्वर, लेकिन आप कभी नहीं बदलने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हम आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रभु। आपका जैसे वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा प्रभु। हाँ प्रभु, हम आशा न खोते हुए प्रभु विश्वास के साथ प्रभु आपके पास एक मन होके आए हैं पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पति पत्नी को आपने जोड़ा है प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है जिनको आपने जोड़ा उन्हें कोई अलग ना कर सके पिता परमेश्वर। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जो भी वैवाहिक जीवन है, जो भी परिवार है प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आपका समझ, बुद्धि दोनों के बीच में प्रभु एक विश्वास, एक प्रभु प्रेम प्रभु उनके जीवनों में हो प्रभु। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी दोनों में से कमजोर है या दोनों कमजोर है, तो पिता परमेश्वर आप उन्हें प्रभु उठाइए, उन्हें बल दीजिए पिता परमेश्वर। आपका कार्य प्रभु उन दोनों के बीच में करिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रभु हम ये मांगते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जिससे प्रार्थना करें वो जिंदा है प्रभु। आपका आँख है प्रभु, आप हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका कान है प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु कोई भी प्रभु समझ और बुद्धि न पाकर प्रभु कोई भी अलगाव ना हो प्रभु। आपका ज्ञान और बुद्धि से उन्हें भर देना प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जिनके प्रभु जीवनों में प्रभु पारिवारिक प्रार्थना नहीं है प्रभु। हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, आपका आत्मा प्रभु वहां पे जाके कार्य करने दीजिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु मदद कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए जिनका मन उलझा हुआ है, जो तैयारी के साथ प्रभु नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, चाह कर भी नहीं कर पा रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप कीजिए प्रभु ऐसा कुछ कार्य कि प्रभु, ताकि प्रभु वो आपसे एक मन होके मिलके प्रार्थना करने वाला परिवार बने पिता परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। हम प्रार्थना करेंगे उद्धार के लिए हमारे बीच में
जितने भी हमारे परिवार के सदस्य जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम रीना सिस्टर के सास ससुर के लिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर देसाई के हस्बैंड के लिए, और हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे रिश्तेदारों में यदि कोई है जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अंजलि के पेरेंट्स के लिए और मीरानी ब्रदर के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरी सिंह सिस्टर के हस्बैंड के लिए, ऐसे अनेक के लिए, जितने भी हमारे परिवारों में यदि कोई उद्धार नहीं पाए। शार्लेट सिस्टर के बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे, ट्रेवर, उसका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर हमारे बच्चों के लिए भी, जैसे वे वचन में बढ़ते हैं, वे परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करके बपतिस्मा ले और उनका उद्धार हो, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। आइए कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे रिलेटिव में प्रभु, और जिन्होंने ब्रदर ने जिनके भी नाम लिए परमेश्वर प्रभु, अभी तक आपके नाम को नहीं जाना है परमेश्वर पिता, इस वक्त हम एक मन होके परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, एक नम्र होके, दीन होके परमेश्वर पिता। हम इन सबों के लिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं परमेश्वर ये आपकी सच्चाई को जाने प्रभु। परमेश्वर आपका वचन कहता है 2 पत्रस 3 में परमेश्वर आप धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। परमेश्वर सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ परमेश्वर, सभी को प्रभु, जितने लोग अभी तक आपको नहीं जानते प्रभु, उन सभी को आपका मन फिराव का अवसर मिले परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु इन सभी के लिए परमेश्वर प्रभु, इनकी प्रभु ये आपको जानने पाए परमेश्वर पिता। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपसे। परमेश्वर इन सभी के लिए हम आपके उद्धार को मांगते हैं परमेश्वर, इनके जीवन के लिए प्रभु। परमेश्वर और भी हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग अभी तक आपको नहीं जाने हैं, अभी तक आपका वचन उनके जीवन में नहीं गया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम लुका 10 और 2 को वचन को वहाँ परमेश्वर क्लेम करते हैं परमेश्वर आपने कहा खेत तो पके हुए हैं पर मजदूर कम है परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमें वो मजदूर बना परमेश्वर, और परमेश्वर हमें वहां तक आप अपने राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ हम ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पूरे विश्वास से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे जो शारीरिक कमजोरी में है या बीमार है हमारे बीच में, स्तुति के लिए प्रार्थना करेंगे। काफी समय से उसको डायबिटीज का है तकलीफ, इंसुलिन लेना पड़ता है। हम आशा नहीं खोएंगे, हम विश्वास करके अभी भी परमेश्वर सामर्थ्य है उसको पूरी तरह से इस बीमारी से चंगाई करने के लिए। हम मांगेंगे स्तुति के लिए। जोसेफ ब्रदर और बेतनी ठीक नहीं है, शारीरिक कमजोरी है, तो दोनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओमकार के लिए प्रार्थना करेंगे, लक्ष्मी चौहान, लक्ष्मी के ब्रदर के लिए, भाई के लिए। ओमकार बेड रिडन है, परमेश्वर उनको खाट से निकाले और जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, ये विश्वास करते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि हमारे बीच में
और कोई है जो बीमार है, हम प्रार्थना में याद रखेंगे। मेरे पीठ दर्द के लिए भी प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर के पास मैं गया, डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज दिया है, वो चालू है। प्रार्थना कीजिए कि पूरी तरह से वो दर्द चला जाए। आइए कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी। प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति को आपके पाक चरणों में लाते हैं। प्रभु ब्रदर ने जितने भी नाम लिए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ओमकार ब्रदर प्रभु जो खाट पे है पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपने रोगियों को चंगा किया पिता परमेश्वर, आपने उनके रोगों को अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर, आपने उनकी निर्बलताओं को सह लिया पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन में आपने खाट उठा के बोला है चल फिर, प्रभु ऐसे ही उनकी वो प्रभु अपनी खाट से उठ जाए और चल फिरने लग जाए पिता परमेश्वर। हम विश्वास से उनके लिए चंगाई मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप यहोवा परमेश्वर है चंगा करने वाले। आपका वचन कहता है कि मैं तुमसे सब प्रकार के रोग दूर करूंगा। वे अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं उसमें से निकालता है। हाँ प्रभु हम परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी चंगाई की सामर्थ्य जो उस ब्रदर के जीवन में कार्य कर रही है पिता परमेश्वर। आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए, उनकी पीठ पे अपने सीधे हाथ रख दीजिए ताकि वो शिफा पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर हम ऐसी स्तुति बच्ची के लिए मांगते हैं पिता, जो प्रभु इतने सालों से इंसुलिन ले रही हो पिता, उसको छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर आप अपनी दया और करुणा उस बच्ची पे कर दीजिए पिता। उसके जो भी प्रभु वो खाती है उसके अंजल पर आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उसके बीच में से रोगों को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु हम उन सबके लिए मांगते हैं, जोसेफ ब्रदर और बेथनी के लिए, कि प्रभु उनके शरीर की हर एक कमजोरी को आपने अपने ऊपर ले लिया पिता। हाँ पिता परमेश्वर जल्दी से उठे प्रभु और तेरे नाम का प्रचार फिर से करे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उन्हें भर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि जब जब कोई हम सब निर्बल होते हैं आपकी सामर्थ्य की छाया से हम बलवंत होते हैं। आपका वचन कहता है देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हाँ पिता परमेश्वर आपने सबको चंगाई दी है प्रभु। अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ पिता आप जानते हैं, उनको भी आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। आपका वचन उनके जीवन में कार्य कर रहा है मेरे यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबको आपने चंगाई दी, आपने सबके रोगों को प्रभु चंगा किया और क्षमा किया हमारे अपराधों को पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज गॉड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनेक ऐसे प्रार्थना के विषयों को हम लेकर आपके पास आए, ये आशा रखते हुए परमेश्वर और विश्वास करते हुए कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहे और आपके इच्छा के अनुसार होने दे प्रभु। पिता परमेश्वर अनेक विषयों के लिए जो भी हमने प्रार्थना किया, हम मांगते प्रभु कि आपका महिमा के लिए उन सब प्रार्थनाओं का उत्तर होने दे प्रभु। विशेष करके उद्धार के विषय में जो भी हमने प्रार्थना किया प्रभु, लोगों का उद्धार होने दे, बच्चों का उद्धार होने दे प्रभु। आपका अद्भुत कार्य हर एक के जीवन होने दे प्रभु। और जो उद्धार पाए हुए हम विश्वास में ठंडे न हो, परंतु हम अपने अपने उद्धार को बनाए, कार्य करें। यस लॉर्ड, हम अपने आप को जांचते रहे कि क्या अभी भी हम विश्वास में है या नहीं, कि हम विश्वास में बढ़ रहे कि नहीं, जैसा वचन हमें याद दिलाता है। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपका अगुवाई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगुवाई हम सबके जीवन में हो। एक बहुत बड़ा बेडारी को भेज परमेश्वर हम सबके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, कलीसिया में। यस लॉर्ड, सेंड अ माइटी रिवाइवल वी प्रे फादर। हम विश्वास करते हैं कि आपका बेडारी हमारे जीवन में आ रहा है। यस लॉर्ड, हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु। वी बिलीव that your revival is coming in our lives. In the name of Jesus, we speak healing in our spiritual lives.
In the name of Jesus, we speak deliverance in our spiritual lives. In the name of Jesus, we speak an overcoming life. We speak revival in Jesus' name. God, we pray that you will send your angel, send your messengers, send the power of your Holy Spirit. God, you do a mighty work. We pray. We come to you in Jesus' name, believing that Jesus paid the penalty of all our sins on the cross in full. हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों का दंड क्रूस के ऊपर पूर्णता से चुकाया। उनके कोड़े खाने से, उनके मार खाने से, उनके लहू बहाए जाने से हमारा आत्मिक बीमारी, पाप के वजह से आत्मिक जीवन, चंगाई प्राप्त हुए, हम उद्धार प्राप्त किए। हम विश्वास करते हैं हमारे पाप क्षमा हुए, ये हम विश्वास करते हैं। हम आपके संतान कहलाए गए। यस लॉर्ड, हमें पुत्रत्व का अधिकार आपने दिया, ये हम विश्वास करते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सामर्थ आने दे प्रभु हम सबके जीवन में। हम जो भी अवस्था में है, उस अवस्था से एक कदम बढ़कर हम आपके साथ के संबंध में हम बढ़े प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। आपका वचन के द्वारा हम सबको आप शुद्ध कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय में हम है। जोसेफ ब्रदर का तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए मैं विनती करूंगा विजया सिस्टर कृपया वचन पढ़िए हिंदी में। जल्द हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का पुस्तक उसका 7वां अध्याय में हम देख रहे थे कैसे स्तीफानोस जब विश्वास और अनुग्रह में, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर जब प्रचार करने लगे, तब कुछ लोग विरोध किए और उनके विरोध का प्रतिक्रिया में स्तीफानोस क्या कर रहे थे? स्तीफानोस वचन के द्वारा उनको समझा रहे थे कि कैसे परमेश्वर जो इब्राहिम, याकूब, यूसुफ और मूसा से बातें की, आने वाला मसीहा के बारे में जो बातें की, भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने, वही यीशु मसीह है जिनका हम प्रचार कर रहे हैं। ये स्तीफानोस ने क्यों जरूरी समझा इब्राहिम, मूसा, यूसुफ और याकूब, इन दासों के बारे में बताने का क्यों जरूरी समझा? क्योंकि इजराइल लोग, यहूदी लोग इब्राहिम, मूसा, दाऊद और ऐसे तमाम परमेश्वर के दासों को तो ग्रहण करते हैं, उनको स्वीकारते हैं, उनको बहुत मान देते हैं, परंतु जिस मसीहा का उन लोगों ने वाणी सुनाया था, भविष्यवाणी की थी, उस मसीहा को उन लोग ग्रहण नहीं किया। इसलिए जरूरी था उनको इस दिशा में वचन के द्वारा समझाने का कि ये वही मसीहा है जिनका प्रचार किया गया था इब्राहिम के द्वारा। तो हम कुछ विषयों को देखेंगे जो स्तीफानोस इब्राहिम के जीवन में और मूसा, यूसुफ और याकूब के जीवन में जो हुआ है, या परमेश्वर उनके द्वारा जो बात किया था, वो स्तीफानोस इस प्रचार में पेश कर रहा है। इब्राहिम के जीवन में एक विषय हमने पिछले हफ्ते देखा था, जो स्तीफानोस कह रहा है कि परमेश्वर इब्राहिम को
जब वो मूर्ति पूजा में था, जब वो अपने देश में था, अपने परिवार में था, तब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, तू निकल अपने परिवार से, अपने देश से, और मैं जो तुझे देश दिखाऊंगा उस देश की ओर निकल पड़। परमेश्वर के आवाज को सुनने पर इब्राहिम आज्ञा पालन करते हुए निकल पड़ा। ये जितना हम हमारे शब्दों से बयान करते हैं या बोलते हैं, उससे भी कई कई गुना ज्यादा ये मुश्किल था इब्राहिम को अपने देश से, अपने परिवार से निकलने के लिए। बहुत आसान है हम शब्दों में बोलने के लिए कि परमेश्वर ने कहा और इब्राहिम निकल पड़ा, लेकिन हम अपने आप को इब्राहिम की जगह में रखकर देखो, अपने अपने जीवनों को जरा टटोल के देखो कि यदि परमेश्वर आपको बुलाएगा, ओके, इब्राहिम के बारे में या मूसा के बारे में हम जब प्रचार के द्वारा कुछ सुनते हैं, आसान है कि हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलने के लिए, ओके। मूसा का जीवन बहुत ही सामर्थी जीवन था, या इब्राहिम ने जो किया, परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, ऐसा एक सामर्थी प्रचार जब आप सुनते हो, तब आप हालेलुया बोलेंगे या प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, आप उत्साहित होंगे। लेकिन कई बार हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं व्हाट डू यू कॉल फॉर हिपोक्रेसी, पाखंडीपन, हमारे जीवन में पाखंडीपन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो बुलावट से परमेश्वर ने इब्राहिम या मूसा या याकूब और यूसुफ को बुलाया, उसी बुलावट से यदि परमेश्वर हमारे बच्चों को चुनेगा या हमें चुनेगा, तो क्या हम हमारे आरामदायक जीवन को छोड़कर ऐसे कोई परमेश्वर के उस सेवकाई में, जिस सेवकाई में परमेश्वर बुला रहा है, क्या हम हमारे ऐशो आराम या सुख विलास को छोड़कर क्या हम उस सेवकाई में कदम रखेंगे? ये हमें अपने आप को जांच कर अपने आप को उत्तर देना है। कल जिस आश्रम में हम जाने वाले हैं, उस आश्रम को नेतृत्व देने वाला पास्टर फिलिप जो है, उनका गवाही यदि आपको याद है, नहीं तो हम कल सुनेंगे उनके द्वारा, ओके। हम सब प्रोत्साहित होंगे जितने भी लोग जा रहे। उनका गवाही, वो मुंबई शहर में केरला से आए थे काम ढूंढने के लिए, लेकिन बहुत बहुत सपनों से, सपने भरे मन से वो आए, शायद पैसा कमाने के लिए, शायद एक जीवन को देखकर वो आए रहेंगे, लेकिन परमेश्वर उनको छुआ, उनको बुलाया एक कार्य के लिए, और वो एक आसान कार्य नहीं था, ओके, आसान कार्य नहीं था। गंदगी में पड़े हुए लोगों को उठाना और उनकी सेवा करना, और ऐसे एक जगह में जाकर रहना जहां पर ऐसे प्रकार के लोगों को लाकर उनकी देखभाल किया जाता है, रोज भाग दौड़ करना, उनके लिए जीना, उनका जीवन उन्होंने समर्पण कर दिया है परमेश्वर के उस बुलावट के सामने, ओके। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे तैयार रहेंगे। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम तैयार हैं? सबके लिए नहीं है वो बुलावट, लेकिन परमेश्वर
हम सबके जीवन में ऐसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ वरदान दिया है। हम सबके जीवन में एक बुलावट है, सेम बुलावट नहीं है, सबका अलग अलग है बुलावट। लेकिन मेरा प्रश्न इतना ही है, हम सबके व्यक्तिगत जीवन में जो भी बुलावट है, पहली बात, क्या हम ये बुलावट को पहचाना है अभी तक? क्या हम पहचानते हैं? ये मैं कई बार ये प्रश्न पूछा हूं, ओके। और यदि अब तक आपने कदम नहीं उठाया है तो मैं और एक बार प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप कदम उठाइए। आपका पहला कदम घुटना है। घुटने में जाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के मुंह को खोजिए, प्रभु मेरे जीवन में आपका क्या बुलावट है। उस बुलावट को सच्चे मन से जब आप खोजेंगे, परमेश्वर आपके हृदय में वो बोझ डालेगा। आपको परमेश्वर ने क्या बोझ दिया है, क्या वरदान दिया है, वो आप पहचानेंगे। उसका सच्चे मन से खोज करो, प्रार्थना करो, खटखटाओ परमेश्वर का उस द्वार को। जब तक वो प्रकटीकरण नहीं होता या स्पष्टता नहीं होता, प्रार्थना करते रहो, ओके। क्योंकि वो जरूरी है। हमारा जीवन बिना लक्ष्य का नहीं जीना चाहिए। हर एक विश्वासी अपने अपने बुलावट को पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इब्राहिम परमेश्वर के बुलावट को सुना, उनके आवाज को पहचाना और उत्तर में हाँ कहा, निकल पड़ा, आज्ञा पालन किया, ओके। और पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि इब्राहिम किस देश की ओर, क्या पाने के लिए निकला, क्या पाने के लिए वो निकला, ओके। सोना चांदी पाने के लिए नहीं। कई बार विश्वासी लोग यदि सेवकाई के लिए भी निकलते हैं, मुझे इसमें क्या मिलेगा, ऐसा विचारधारा से निकलते हैं, ओके। कई परमेश्वर के दास लोग भी ऐसे हैं, मुझे इसमें फायदा क्या होगा, ऐसे सोचकर सेवकाई भी इस सोच से करने वाले ऐसे कई परमेश्वर के दास लोग हैं, ओके। पैसों का लोभ। परमेश्वर यदि हमें कुछ सेवकाई सौंपता है तो हमें वो क्या लाभ होगा उस मनोभावना से नहीं करना है, ओके। फाउंडेशन में जाओ। परमेश्वर के बुलावट के फाउंडेशन क्या है, नींव क्या है। मत्ती का 10वां अध्याय में स्पष्ट लिखा है, जब यीशु मसीह शिष्यों को भेजता है सेवकाई के लिए, तो वहां पर विस्तार में लिखा है, वो आप बाद में आपके व्यक्तिगत अभ्यास में पढ़ो कि कैसा जाना है, ओके। परमेश्वर के बुलावट के उत्तर में जब आप हाँ कहते हो, आपको कैसे जाना है। कोई भी सांसारिक फायदा सोचकर नहीं जाना है, हमें क्या फायदा होगा ये सोचना ही नहीं है। पर प्रभु ने आपको बुलाया है, कुछ बोझ आपके दिल में डाला है, वो बिना कोई do it with a selfless heart. What do you call for selfless? निस्वार्थी मन। हाँ, निस्वार्थ बनकर करो, ओके। आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, ओके। तो परमेश्वर इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम कैसे निकल पड़ा, उस देश की ओर निकल पड़ा, न जानते हुए कि वो कहां जा रहा है। इब्रानी का पुस्तक में स्पष्ट लिखा है 11वां अध्याय में
He did not know where he is going. That is why he is called the father of faith. विश्वास से निकल पड़ा न जानते हुए कि वो कहां जा रहा है. ओके परमेश्वर ने इब्राहिम को इसहाक अपना एकलौता बेटा को बलिदान करने के लिए कहा. जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा बलिदान करने के लिए, वो निकल पड़ा. ये सब जो उदाहरण है, कहना बहुत आसान है, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसा सोच कर देखो, आपका बेटा या बेटी को परमेश्वर बलिदान करने के लिए कह रहा है, हम में से कितनों को वो मन होगा? तो इब्राहिम अपना बेटा को लेकर निकला. बेटा पूछ रहा है बलिदान करने के लिए बकरी कहां पर है? ओके इब्राहिम विश्वास से कहा यहोवा इरे. आमेन. यहोवा इरे, द गॉड विल प्रोवाइड. गॉड विल प्रोवाइड. उसका दो अर्थ है. या तो परमेश्वर मेरा बेटा को बलिदान होने से बचाकर सही वक्त पर एक भेड़ का प्रबंध करेगा, वो एक अर्थ है. दूसरा अर्थ यहोवा इरे जब इब्राहिम कहता है, उसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि इब्राहिम ऐसा सोचा होगा कि यदि मुझे इस वेदी पर मेरा बेटा इसहाक को बलिदान भी करना पड़े, परमेश्वर उसको मृत्यु में से जी उठा सकता है. वो मुझे 100 साल की उम्र में एक बेटा दे सकता है, तो मुझे 115 या 117 साल के उम्र में भी मुझे बेटा दे सकता है. हो सकता है इसहाक उस वक्त 15 साल या 17 साल का उम्र का होगा, पता नहीं मुझे. लेकिन द गॉड हु गेव आइसक टू इब्राहिम इन द ईयर ऑफ 100, he can give another son at the year of 115 or 20. इब्राहिम ने कहा यहोवा इरे. हमारे हर कामों में विश्वास को कार्य में प्रकट करना ये बहुत जरूरी है, जैसा याकूब कहता है. और आगे 8वां वाक्य पढ़िए सिस्टर. प्रेरितों का 7वां अध्याय उसका 8वां वाक्य. और उसने उससे कतने की वाचा बांधी, और उसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका कतना किया गया, और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए. बस मुझे यहाँ पर कहने में बहुत खुशी हो रहा है कि कई लोगों का वीडियो ऑन है. आप लोगों का चेहरा देखकर बात करने में बहुत खुशी होता है. बाकी लोग भी वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. ओके प्रेज गॉड. 8वां वाक्य हमने पढ़ा. क्या पढ़ा? देन ही गेव हिम द कवेनेंट ऑफ सर्कमसिशन. पढ़िए हिंदी में. और उसने उससे कतने की वाचा बांधी. परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ खतना करने का वाचा बांधा. ओके ये खतना जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का इब्राहिम के साथ का जो रिश्ता है, उस रिश्ता का एक प्रमाण जो है वो खतना भी है. खतना भी है. विश्वास का पिता के साथ का जो वाचा है, वो वाचा का एक प्रमाण के रूप में खतना का वाचा परमेश्वर ने बांधा. गॉड established
the covenant of circumcision with Abraham. Or Abraham is the father of faith. And we who have put our faith in Jesus, okay, God has made a covenant with us through Jesus. जैसा इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने खतना का वाचा बांधा है, जो विश्वास का पिता था, और हम भी जब परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास प्रकट करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ भी खतना का एक वाचा बांधता है। हम शारीरिक तौर पे खतना नहीं करते, हमारे शरीर के अंग को खतना नहीं करते, परंतु आत्मिक जीवन में हमारा खतना होना बहुत जरूरी है। It is important for us to circumcise ourselves in a spiritual way. And what is the spiritual circumcision for us who have put our faith in Jesus? Philippians chapter 3 verse 1 to 4. फिलिपियों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहला वाक्य से पढ़ेंगे। हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर का हमारे साथ खतना का वाचा क्या है? फिलिपियों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 1 से 4। तीसरा का 1 से 4 ना? यस। इसलिए ए मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वाले से चौकस रहो, क्योंकि कतना वाले तो हम ही है, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीहा यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। बस तो पहला और दूसरा वाक्य में पौलुस फिलिपी कलीसिया के विश्वासियों को चेतावनी दे रहा है कि किस बात से हमें सावधान रहना है। ओके, गलत काम, बुरे काम, ओके, और पाप से हमें सावधान रहना है, पाप नहीं करना है। ऐसा कहने के बाद तीसरा वाक्य में पौलुस क्या कहता है, और एक बार पढ़िए तीसरा वाक्य। हम कौन है? क्योंकि कतना वाले तो हम ही हैं। तो जो एक मिनट, तो हम सब कौन है? ये वाक्य हमारे लिए है, हम सब विश्वासियों के लिए है। ओके, मैं चाहता हूं कि आप खुद के बारे में ये वचन को अपने ऊपर लागू करके बोलिए, अपने ऊपर लागू करके बोलिए। ओके, हम कौन है? हम, पढ़िए तीसरा वाक्य। हम, क्योंकि कतने वाले तो हम ही है, खतने वाले तो हम ही है, हम ही है। We are the circumcision. We are the circumcision. Okay? पुराने करार में शरीर का एक अंग का खतना किया जाता था, परंतु हम नए करार विश्वासियों के लिए हम पूर्णता से खतना किया हुआ व्यक्ति है। ओके, उसका अर्थ क्या है? हम पूर्णता से खतना किया हुआ है, उसका मतलब क्या है? पढ़ते जाइए आगे। क्योंकि कतने वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीहा यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर भरोसा न रखना, ये है खतना का अर्थ, आत्मिक अर्थ। शरीर पर हम भरोसा नहीं रखते। तो इब्राहिम को जब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जब वाचा बांधा, खतना का वाचा बांधा, शरीर का उस अंग का जो काटना या खतना करना, वो एक चिन्ह के रूप में था कि हम
शरीर पर भरोसा नहीं करते, इसके लिए काट देते हैं। ओके, तो हम शारीरिक तौर पे हमारे कोई अंग को खतना नहीं करते, परंतु हम स्वयं एक खतना, सॉरी वो हिंदी में और एक बार शुरुआत कैसा है? क्योंकि कतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। खतने वाले हम ही है। Okay, we are the circumcision. That's the word for us. We are the circumcision. It's not one of our part of our body, or it is not just one behavior in our life that we are circumcising, but we as a whole, we circumcise. We are the circumcision. Okay, तो हमारे जीवन में ऐसा जो भी चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, वो हमें काट कर अलग करना है। That is called circumcision. Okay, तो हमारे जीवन में जो भी ऐसी चीजें हैं, परमेश्वर का वाचा है हमारे साथ कि हमें वो काट कर, क्या हम अभी भी हमारे जीवन के ऐसे कुछ चीजों को संभाल कर रखा है? कोई गलत स्वभाव को हम बढ़ावा दे रहे? तुरंत ही हमें काट कर खतना करना है, उस स्वभाव को काट देना है। Okay, we have to cut it out. And we have to tell ourselves that we have no confidence in our flesh. Our flesh is a deceiver. We cannot trust our flesh, but we trust in the Spirit of God that gives us the power to overcome every fleshly deeds, every behavior that is not of God, every behavior that God is not pleased with in our life. We overcome by the blood of the Lamb. We overcome by the Spirit of God. हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उनके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हम विजयवंत प्राप्त करते हैं हर एक उन स्वभाव के ऊपर जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। ऐसे स्वभाव के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। उन स्वभाव, गलत स्वभावों को हम काट कर फेंक देते हैं। ये परमेश्वर का वाचा है, खतना का वाचा है हमारे साथ। We are accountable to God. हमें परमेश्वर को उत्तर देना है। कोई भी हमें न्याय नहीं कर सकता, हमें अपने आप को न्याय करना है। We have to examine ourselves. यदि हम अपने आप को न्याय नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने खतना का वाचा बांधा। ओके, खतना का वाचा बांधा। ये स्तीफानोस यहूदियों को याद दिला रहा है इब्राहिम के जीवन के द्वारा। और फिर यूसुफ के बारे में स्तीफानोस क्या कहता है? प्रेरितों का 7वां अध्याय उसका 9वां वाक्य। प्रेरितों का 7वां अध्याय उसका 9 और 10। कुलपतियों ने यूसुफ से डह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उससे उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हकीम नियुक्त किया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ गलत व्यवहार किया, उसको धोखा दिया। हम सब उस घटनाओं को हम जानते हैं।
यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को उस खड्डे में डाला। पहला तो मार डालना चाहा, परंतु एक भाई ने चेतावनी दिया, तब नहीं किया, मार नहीं डाला, परंतु उसको खड्डे में डाला और फिर वहां से मिद्यानी लोगों को बेच दिया। ओके, कुछ पैसों के लिए बेच दिया अपने भाई को। आप अपने आप को यूसुफ के जगह में रखकर जरा सोचिए, आपको कैसा लगेगा? आपने कोई गलत नहीं किया है, फिर भी आपके साथ अन्याय हो रहा है। ओके, क्या हमारे जबान में वो शब्द नहीं आएगा, प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? आप कहां पर है? आप मुझे क्यों नहीं बचा रहे? लेकिन यूसुफ को ये सब प्रश्न नहीं आया, क्योंकि यूसुफ उसके परमेश्वर को जानता था। हमारे मनों में या जबान में ऐसे प्रश्न जब आते हैं, परमेश्वर आप कहां है, उसका मतलब हम परमेश्वर के करीब आने का बहुत आवश्यक है। हम परमेश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानते। परमेश्वर कहां है जब हम पूछते हैं, सच्चाई में परमेश्वर हमारे बगल में, हमारे साथ है। आप पूछेंगे साथ है तो ये सब तकलीफ क्यों हो रहा है? किसी ने तो गलत सिखाया, इसीलिए हमारे मन में ऐसा है कि परमेश्वर साथ है तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। उस गलत विचार को निकाल दो। परमेश्वर साथ है तो भी तकलीफ हो सकता है। तो फर्क क्या है हमारे और दुनिया के बाकी लोगों में? फर्क ये है कि परमेश्वर उन तकलीफ और समस्याओं के बीच में हमें अनुग्रह देता है उन तकलीफों का सामना करने के लिए। परमेश्वर साथ इसके लिए है, तकलीफों को दूर करने के लिए नहीं है। परमेश्वर कोई परिस्थिति में परमेश्वर तकलीफों को दूर करता है, परंतु जिन परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपके तकलीफ को दूर नहीं किया है या चंगाई नहीं दिया है, निश्चय रहिए परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है। ओके, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह चंगाई से भी एक सामर्थी चमत्कार है। God's grace is a much mightier miracle than healing. When God gives you grace to go through that pain, it's a much powerful miracle that you have the strength to go through that pain in your life. Not your own strength, but it's God who gave you that strength. So, परमेश्वर के अनुग्रह को भी जरा हमें उसके अहमियत को समझना है. We have to understand the importance of the grace of God, not just the healing and miracle of God, the other miracles. तो यूसुफ को जब उस खड्डे में डाला, यूसुफ को जब त्यागा, उसके अपने भाइयों ने त्याग दिया, यूसुफ को जब उस मिद्यानी लोगों के हाथों में बेच दिया कुछ पैसों के लिए, यूसुफ को मिद्यानी लोगों ने मिस्र देश में बेच दिया एक गुलाम के रूप में. एक गुलाम अपना बेटा का अपना पिता का सबसे चाहने वाला बेटा यूसुफ अब कोई अन्य देश में गुलामी कर रहा है, गुलाम है. जरा उसके मनोभावना को, मन के अवस्था को समझो. और मिस्र देश में पहुंचने के बाद यूसुफ के ऊपर एक गलत आरोप लगाकर उसको जेल में डाला गया. कैसे कैसे अवस्था से यूसुफ का गुजारा हो रहा है. ओके, लेकिन
इन सब परिस्थितियों में उत्पत्ति का पुस्तक स्पष्ट रीति से कहता है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था. God was with Joseph while he was in the pit, while he was sold to the Midianites, while he was in Potiphar's house, while he was blamed for what he did not do, while he was put in prison. God was with him. हम क्यों ऐसा सोचना चाहिए कि यदि मुझे एक प्रमोशन मिला, मुझे एक अच्छा घर मिला, मुझे मेरे बच्चे को एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिला, मुझे मेरे जीवन में सफलता मिला, केवल उन्हीं समयों में परमेश्वर हमारे साथ है, क्यों हम केवल ऐसा सोचना चाहिए? क्या आप लोगों के जीवन में ऐसा कोई प्रार्थना है जिसका उत्तर नहीं मिला है अभी तक? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई बीमारी है जिसका चंगाई नहीं हुआ है? क्या आपके जीवन में ऐसे कोई कठिन परिस्थिति है अभी? क्या आप विश्वास कर सकते हो कि परमेश्वर आपके साथ है? विश्वास करो. God is with you. Okay? आखिरी में एक वाक्य, एक शब्द जिसमें कहकर समाप्त करना चाहूंगा. मरियम के गर्भ में, मरियम के पेट में कौन था? यीशु. लेकिन मरियम कौन से अवस्था से होकर गुजर रही थी? समाज उसको त्याग दिया. यूसुफ के साथ विवाह होने के पहले ही वो गर्भवती पाई गई. वचन कहता है समाज ने उसको त्याग दिया, अलग अलग नाम दिए समाज ने. यीशु बड़ा होने के बाद भी लोगों ने यीशु के मुंह पर ताने मारे, हम जानते हैं कि तू किसका बेटा है, ऐसा कहकर. ओके, तो मरियम के पेट में जो व्यक्ति है, जो बेटा है, जो बच्चा है, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह था. उसके बावजूद मरियम को तनाव और समस्याओं से, त्याग, समाज के त्यागे जाने अवस्था से गुजरना पड़ा. यूसुफ भी उसको त्यागना चाहा, वचन कहता है, परंतु पवित्र आत्मा यूसुफ को के साथ बात किया, इसीलिए यूसुफ ने उसको पत्नी करके ग्रहण किया. ओके, the child who was in Mary's bosom was the Savior Jesus. Still, Mary went through rejection and all kinds of problems in life. Okay, but the one who was in her womb was Emmanuel, God with us. Okay, जो उसके गर्भ में था वो कौन था? इम्मैनुअल था, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है. तो परमेश्वर मरियम के साथ उसके गर्भ में उसके साथ रहने के बावजूद वो तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा. क्या ये हमें उत्साहित देने वाला शब्द नहीं है? हमारे तकलीफों को झेलने का, सामना करने का एक नजरिया बदलना बहुत जरूरी है. ओके, आने दो तकलीफ और आने दो, ऐसा कहो. क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है. ओके, गॉड इज विद अस. तो स्तीफानोस यहूदियों को याद दिला रहा है कि जिस मसीहा को तुम लोगों ने त्यागा, ओके, वो वही मसीहा है जिसका भविष्यवाणी किया गया था इब्राहिम के द्वारा. और यूसुफ का जीवन को जरा ध्यान से देखो, ऐसा स्तीफानोस याद दिला रहा है कि यूसुफ को बेचा गया, यूसुफ के साथ अन्याय हुआ,
परंतु उसी यूसुफ का बेटा याकूब के द्वारा जो आने वाला मसीहा का वंशावली था, ओके, मसीहा हमारे लिए आया। ओके, सो गॉड इज विथ अस, लेट अस बोल्डली फेस द चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के अनेक उतार और चढ़ाव को हम हिम्मत के साथ सामना करें। परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, केवल एक चीज का हम क्या करें, हमारे विश्वास के संबंधित, उद्धार के संबंधित, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न जीवन जी रहे, उन चीजों के संबंधित हम चिंता प्रकट करना चाहिए। बाकी सब चीजें कभी हर चीजों में उतार और चढ़ाव होगा, लेकिन हमारे विश्वास, हमारा स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर, उसमें हम परिपक्व होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। We should have an ambition to grow, to be promoted in our character of Christ, the character of Christ in us. Let that only bother us. If we are not behaving like Christ, then let us introspect and let it disturb us. हम परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक इन वचनों के आधार पर हम अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया जीसस। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु। सर्वशक्तिमान यहोवा, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर है और आपने हमें चुना है और इस दिन तक आपने हमें संभाल के रखा हुआ है। आपके वचन जो सत्य है, जो हर एक दिन हमें प्रकाश देते हैं प्रभु, और आज के दिन में प्रभु आपने एक विशेष तरीके से हमसे बातें की, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। कहना तो बहुत आसान होता है कि विश्वास करो, परमेश्वर आपके संग है, परंतु जब विश्वास की गलियों से हम गुजरते हैं पिता परमेश्वर, सहायता कर पवित्र आत्मा कि हम आपके वचनों को थामे हुए रखे प्रभु। आपके वचन जो जीवन है प्रभु, जिसे हम हर एक दिन ना सिर्फ सुने परंतु उसको मनन करें और उसके अनुसरण में जीने के लिए प्रभु सहायता कर। और हमारा चरित्र प्रभु, हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक सप्ताह दर सप्ताह सालों से प्रभु, जैसे हम आपके वचनों को सुनते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम पूरे प्रकार से अपने आप को इसे दे दे प्रभु। आपने जो बुलावट प्रभु हर एक के जीवन पे ऊपर दी है प्रभु, उस बुलावट के प्रति प्रभु हम सभी लोग ईमानदार रहे प्रभु। जिस प्रकार से हम अपने कार्य क्षेत्रों में, नौकरी में, व्यवसाय में हम वफादार होते हैं, हमारा जो संसार का स्वामी होता है, जो हमें वेतन देता है, उसके प्रति हम वफादार होते हैं, तो हमें कितने ज्यादा वफादार होना चाहिए हमारे स्वर्गीय पिता की ओर, आबा पिता की ओर, जिसने हमें जीवन दिया है और अनंत जीवन दिया है। पिता सहायता कर कि ये वचन प्रभु ना सिर्फ हमारे जीवन में परंतु हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु। हमारा परिवार प्रभु एक प्रार्थना का मंदिर कहलाए प्रभु। हमारा हर एक व्यक्ति प्रभु आपके उस प्रकाश को, आपके उस ज्योति को प्रकट करे प्रभु, क्योंकि जहां पर आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है प्रभु। और जैसे कि वचन कहा गया है कि जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो उनकी संतान कहलाते हैं, उनको अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता कि आज हम इस संसार में खोए हुए व्यक्ति नहीं है परंतु हम बचाए गए व्यक्ति है प्रभु। हमने आपके प्रकाश को, आपकी ज्योति को, आपके उस स्वादिष्ट और उस अनंत काल के जीवन को चखा है प्रभु। उस जीवन को प्रभु हम औरों तक पहुंचाने के लिए प्रभु सहायता कर कि हमारे कार्य के द्वारा प्रभु, हमारे
जीवनों के द्वारा प्रभु हमारे आसपास के जो लोग हैं प्रभु, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे कार्य क्षेत्रों में प्रभु, जहां कहीं हम सफर करते प्रभु, हर एक पर प्रभु आपका वचन प्रभु कार्य करने के लिए प्रभु हमारे द्वारा प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा कि हम खतना वाले तो हम है ही है, और उस खतना वाले हम है ही, इस बात को हम सदैव प्रभु हमारे मन में रखे प्रभु। हम ये जाने कि हम तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं और इस संसार का हम पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो कार्य करता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अनुग्रह देते हैं, जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं, प्रभु आपका न सिर्फ अनुग्रह है परंतु उसी के साथ में आपकी शांति भी हमारे साथ में है, जो हर एक मन से परी है प्रभु, जो संसार नहीं देता परंतु आप देता है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप सत्य है, आपका वचन सत्य है प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक परिवार के लोगों के लिए प्रभु, जो यहाँ पर इकट्ठा हुए प्रभु, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, ग्रहण करते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में कमी घटी है प्रभु, पर तो हम विश्वास करते हैं कि हमें जो बुलाने वाला है वो परिपूर्ण है प्रभु। हमें जो बुलाने वाला है वो ईमानदार है, वफादार है, वो हर एक बातों को पूर्णतया करेगा। सिर्फ हमें अपने आप को आपके सामने मौजूद करना है, खाली पात्र के समान जो आपकी महिमा को धरे हुए हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इन सभी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हमारे परिवार के लोगों को प्रभु, हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। कलीसिया के मेषपाल अगुओं के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि आपकी बेदारी प्रभु, आपका संजीवन प्रभु उनके जीवन में आने के लिए प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु अपने अपने परिवार के संग बैठकर प्रभु प्रार्थना करे, दीनता में और नम्रता में अपने घुटनों पर आके प्रभु आपसे दुहाई करे प्रभु, कि मांगे परमेश्वर कि आप ही सभी बातों का उपाय करने वाले परमेश्वर है प्रभु। जो बातें सांसारिक नजरों से असंभव है उसे आत्मिकता में पूर्ण आप करते हैं प्रभु। और इस महामारी के दौरान प्रभु आपने हर एक को बचा कर रखा है प्रभु, हर एक की पूर्तता की है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का, आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी सुरक्षा हम में से हर एक व्यक्ति पर है प्रभु। इस रात के समय को आपके हाथों में सौंपते, आने वाले दिनों को प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु सच्चाई में चलने के लिए और अपने मुखों को खोलकर प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करने के लिए प्रभु सहायता करके रखें। जैसे कहते हैं, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूले, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you everyone.